روس سلامت رہے تا قیامت رہے۔ مارکہ حق میں شاندار فتح اور جشن آزادی پر قوم یکجان، شاد باد رہے پاکستان۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح سے جشن آزادی کا لطف دبالا۔ ملک بھر میں 78واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی تقریب کا انعقاد۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پنجاب رینجرز کے دستے نے یوم آزادی پر پاکستان مانومنٹ پر تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ ثقافتی لباس پہنے ننھے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ پرچم کشائی کے موقع پر ملی جوش و جذبے سے قومی ترانہ پڑھا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی اور یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم کی یوم آزادی پر تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت۔ کہا یہ میثاق صرف معیشت کی بحالی نہیں بلکہ وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں۔ تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں۔ سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں۔ سیاسی تقسیم اور ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر اجتماعی سوچ اپنائیں۔ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو $150 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ نئے فتنے کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے۔ صدر زرداری کی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ بھارتی جارحیت پر ہم نے بھرپور قوت سے وطن کا دفاع کیا۔ امن کے خواہاں ہیں مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔ جذبے کو معاشی بحالی اور تکنیکی ترقی کی جانب لگانا ہوگا۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد ہمارے دل کے قریب ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یوم آزادی پر تمام اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا کہ آج ہم اپنے بزرگوں اور بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ، بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج بھی ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے افراد کو شکست دینے کے لیے اپنے بھاری جانی و مالی قیمت ادا کی۔ پہلگام سے آنے کی پاکستان نے نہ صرف مذمت کی بلکہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ آپریشن بنیان مرصوص افواج پاکستان کی بہادری ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں مارکہ حق اور 78ویں جشن آزادی کی پروقار تقریب۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء اور دوست ممالک کے سفراء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ JF-17 تھنڈر کا گرجتا فلائی پاسٹ، تینوں مسلح افواج پر مشتمل بینڈز نے شاندار مارچ پاسٹ کا شاندار عملی مظاہرہ کیا۔ پاک آرمی، پاک بحریہ، فضائیہ کے چاق و چوبند دستوں، پنجاب رینجرز اور FC خیبر پختونخوا کے دستوں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ نعرہ تکبیر بلند کرتے SSG کمانڈو کی پریڈ کا نعرہ حق نے حاضرین کا لہو گرمایا۔ برادر اسلامی ملک ترکی اور آذربائیجان کی مسلح افواج کے دستے بھی شریک ہوئے۔ قومی پرچم کی آمد پر حاضرین نے کھڑے ہو کر پرتپاک استقبال کیا۔ شفقت، امانت علی، علی عصمت اور دیگر گلوکاروں نے ملی نغمے سنا کر حاضرین سے داد سمیٹی۔ چاروں صوبوں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ معروف ڈھولچی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈرمر گمبی نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ 14 اگست 1947 کو ایک نئے آزاد ملک نے جنم لیا۔ اسی طرح 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ ہمارے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کر جو آزادی حاصل کی تھی، ہم اس کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ اسلام آباد کے جناح اسپورٹس کمپلیکس میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے سنگ میل ثابت ہوگا۔ 10 مئی کو پاکستان ایک نئی قوم بن کر سامنے آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ میں بہترین حکمت عملی اپنائی۔ چین، ترکی اور سعودی عرب نے جنگ کے دوران ہمارے موقف کی کھل کر تائید کی۔ جنگ بندی میں ٹھوس اور مثبت کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ٹرمپ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروائیں گے۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق ماڈل کی نقاب کشائی بھی کی۔
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पैगामात में कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सच्चाई, इंसाफ और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ से कायम रहती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का पैगाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि 14 अगस्त सिर्फ जश्न नहीं, तजदीद अहद का दिन है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की क़यादत और कुर्बानियों का नतीजा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खून, आंसू और शहादतें वो कीमत थी जो आज़ादी के लिए अदा की गई। आज का पाकिस्तान उन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान हमारी आन, बान और शान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गड्डापुर ने कहा कि मार्का हक में फतह से जश्न आज़ादी की खुशियाँ दुबाला हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने मार्का हक में भारत के दांत खट्टे किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि जश्न आज़ादी का दिन कश्मीरियों को उम्मीद देता है कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, वातिया खानी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन को जवाब देने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। इस बार जश्न आज़ादी पहले से बढ़कर जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कायम मकाम गवर्नर और कोर कमांडर लाहौर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को कौम की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। ये जज्बा मार्का हक 10 मई से जुड़ा हुआ है। पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान अपने दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार है। जश्न आज़ादी के मौका पर सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकारीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस परचम कुशाई की तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने परचम कुशाई के बाद पौधे लगाए। लाहौर, सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी परचम कुशाई की। यौम आज़ादी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान को मुबारकबाद। बयान में कहा कि अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर पाकिस्तान की मसरूफियात को सराहता है। हम इक़्तिसादी ताउन के नए शोबों की तलाश के मुंतज़िर हैं। उनमें अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी शराकत दारी शामिल हैं। अमरीकी अवाम और तलबा की जानिब से भी पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सब्ज़ हिलाली परचम थामे अमरीकी तलबा का पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का पुरजोश नारा। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों के लिए अमन, दोस्ती और बाहमी ताउन का पैगाम दिया। ईरानी सफीर और रूसी सफारत खाने के खुसूसी तहनीती पैगाम। जापानी सफीर ने वीडियो पैगाम में पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। आयरलैंड की सफीर ने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में चरागां और आतिशबाजी। रात 12 बजते ही नौजवान कौमी परचम और झंडियां लिए सड़कों पर निकल आए। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन, अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का आज़म दोहराया गया। यौम आज़ादी पर पंजाब भर में जश्न की नई तारीख रकम। तमाम 41 अजला में बैक वक्त आतिशबाजी और लेजर शोज का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। लिबर्टी चौक लाहौर में आज़ादी का अज़ीमुश्शान जश्न मनाया गया। फायरवर्क्स ने देखने वालों को हैरान कर दिया। मीनार पाकिस्तान, हुजूरी बाग समेत अवामी मकामात पर पुरवकार तकरीबात हुई। कराची के नेशनल स्टेडियम में शानदार जश्न और म्यूजिकल कंसर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने केक काटा। क्वेटा में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आला समेत सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली ने शिरकत की। वादी नीलम के इलाके एट मकाम में कंट्रोल लाइन एलओसी केरन में यौम आज़ादी की तकरीब, आतिशबाजी। मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। मीरान शाह में यौम आज़ादी और मार्का हक की खुशी में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। यूनुस खान स्टेडियम में मुनक़दा तकरीब में शुरका ने रिवायती रक्स पेश किया। गवादर में यौम आज़ादी पर कोहे बातिल के पाकिस्तान पॉइंट पर शानदार आतिशबाजी।
14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों पर PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज मामूल बन गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा PTI ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। इस साल फौज के 700 शहदा ने जान दी। PTI के किसी लीडर ने ताज़ियती बयान नहीं दिया। कोई शख्स या लीडर वतन से बढ़कर नहीं, अव्वल व आखिर पाकिस्तान है। आज के दिन वादा करें हम नफरत नहीं मोहब्बत बांटेंगे, पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली की मंजिल तक पहुंचाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा सब्ज़ हिलाली परचम सिर्फ एक कपड़ा नहीं कि हमारे ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी की अलामत है। हम सब का फर्ज है कि अपने वतन की हिफाजत की अपने ईमान की तरह अजीज रखें। जमहूरी इदारों की मजबूती ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हम अपने जमहूरी रहनुमाओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और आवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की। हम उस वतन की खिदमत, सलामती और इसकी तरक्की के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला हो गया। आवाम से गुजारिश है जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, लेकिन ज़मीन पर गिरी हुई झंडियां भी उठाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा हमारा परचम हमारी पहचान है, अपनी पहचान को पांव तले मत रौंदें। यौम आज़ादी पाकिस्तान पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। डूडल के डिज़ाइन में तब्दीली करते हुए सब्ज़ हिलाली परचम को आसमान पर लहराते हुए दिखाया गया। शहीद पुलिस लाइन। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 65% भर गया। PTMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सतह बरकरार। दरिया झेलम, तनाब, रावी, सतलुज और काबुल के साथ मुल्का नालों में भी बहाव मामूल के मुताबिक है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में हमले बढ़ा दिए हैं। दीगर इलाकों पर भी बमबारी। मजीद 90 से जायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 37 निहत्ते अफराद भी निशाना बने। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 235 हो गई। यूरोपीय ममालिक का गजा में बढ़ते कहत पर तशवीश का इजहार। इसराइल से इमदाद की महफूज फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। न्यूजीलैंड ने गजा इमदाद में रुकावट और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीकी और रूसी सदर की आम मुलाकात कल होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की रूसी सदर को अमन मुज़ाकरात के लिए राजी न होने पर संगीन नताइज की धमकी। कहा भारी टैरिफ, सख्त पाबंदियों समेत कुछ भी हो सकता है। पुतिन के साथ मुलाकात का मकसद यूक्रेनी सदर के साथ सहफ़रीकी मुलाकात की राह हमवार करना है। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमन मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन को 4 मुतनाज़े इलाकों से फ़ौज वापस बुलाना होगी। जंगबंदी के लिए दूसरी शर्त यूक्रेन को नेटो में शमूलियत का मंसूबा तर्क करना होगा।